that WebEx software, वो हम नहीं सुन पाते थे, ठीक से नहीं सुन पाते थे। और दुरंत की बात यह है, out of 10 information commissioners, only 4 commissioners started hearing virtual hearing. The remaining, they never adopted this virtual hearing because they never knew how to use the technology. अभी भी कर्नाटका इंफॉर्मेशन कमीशन का only four information commissioners are having only the email. None of other information commissioners are using this technology, e-governance systems. Then they never upgraded it. They are still stuck on to the virtual hearing, and this is one of the problem, major problem. Some of the places which are far away, nearly 800-900 kilometers away, उनसे उतना दूर से आना पड़ता है बच्चे हियरिंग करने के लिए, फिजिकल हियरिंग करने के लिए। this is non-updation of these information commissioners, technology information. ये क्या हो गया है, बहुत से इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा ये है, हम तो IT कैपिटल है बैंगलोर, so most of the services are under e-governance system only, but unfortunately there is, even for filing, recently they have introduced online filing of RTA application, but that is also not working. First appeals there is no, they have made provision for filing first appeal under RTI, that is also not working. Information Commission, they made an attempt to introduce this online filing of second appeal, that is also not happening. So पूरा ये technology, unless they update the technology, and these virtual hearings are not possible, physical is not possible. That means efficiently they cannot handle. This is one of the problem. ये facility permanent होना चाहिए, not only for the COVID, even after it should continue, because it will save lot of time, both to the public information officers as well as to the applicants also here. So online filing facility should be given, online hearing should be done here. And Rahul ji साहब ने बहुत अच्छा Facebook में कर रहे हैं, वो technology, that is a good technology and easily available, and most of the it is easily accessible. I think Facebook is one of the best platform, Facebook, through which this virtual hearing can be held. Zoom meetings में नहीं held कर रहे हैं कर्नाटक में, and जो WebEx द्वारा कर रहे हैं, there are lot of technical issues are there, so they are unable to clear most of the cases here. Online filing of first appeal, this is also given. Hearing of first appeals through online should also be introduced here. In Karnataka, most of the departments have been computerized, connected with the network connections है, सभी को internet facilities है. So unless they adopt it, and it will be very difficult to bring down dependency, and it will be for effective implementation, it may not be possible for effective implementation of the RTA Act here. Online filing of second appeals, Karnataka Information Commission में अभी नहीं जाओ, program is ready, they launched it experimentally, but none of the information commissioners are interested in it here. I don't know what is the reason behind it. We have been pursuing it here. Unless we have a strong system, and here it's a permanent, it should be permanent system. Central Information Commissions का चल रहा है, जो NIC studios के द्वारा चल रहा है, वो बहुत ठीक ढंग से चल रहा है, and it is very convenient to us also here. We need not come to Delhi to appear in the physical hearing here. Even we can go to the NICs, all districts are having NIC studios are there. When he say cases present कर रहे हैं, तो system बहुत आसानी से चल रहा है. I think state information commissions should adopt this virtual hearing, and I think one standard format, program has to be developed for this conducting of virtual hearing in information commissions. So धन्यवाद. वीरेश जी, एक छोटा सा सजेशन, जो कर्नाटक के आयुक्त अनपढ़ और गवार हैं, जो सिंपल जूम या दूसरा नहीं हैंडल कर सकते, व्हाट्सएप करते हैं कि नहीं? नहीं सर, they are not even doing it WhatsApp also. They are not using it.
So basically they are against I think technology. ऐसे लोगों को तो आयुक्त बनाना ही नहीं चाहिए. हाँ, yes. मेरे ड्राइवर और प्यून जो है वो व्हाट्सएप यूज कर लेते हैं. Yes, yes, sir. Yes. एंड सेंट्रल कमीशन को भी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बट वो मेरे ख्याल से कर रहे हैं या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर. कि एनआईसी भी नहीं, घर से आप कर सकते हो, तो एनआईसी के लिए भी किसी को जाना पड़े ना कहीं पे. Somebody has to travel to reach the NIC. NIC studio. Yes, sir. Travel 50 kilometers or 100 kilometers. Yes, 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 sir. Yes. Instead, why not make it universal? Yes, that's correct, sir. Yes. The one standard for the procedure has to be drawn. अरे Zoom is very convenient. अभी हम लोग कितने लोग जुड़े हैं? Yes, sir. Yes. 65 लोग जुड़े हैं सब देश भर से. And I'm sure कुछ लोग तो इनमें से शायद ऐसे होंगे जो एसएससी भी नहीं पास किया होगा, वो भी जुड़ पाते हैं. Yes, yes. तो ये आयुक्त ये कहे कि हम नहीं कर पाते हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं. Yes. तो काम ही नहीं करना है, उनको रिजाइन हो जाना चाहिए. Yes, sir. और ये डिमांड हम सबको, और देश भर में मैं कह रहा हूं कि ये डिमांड अगर हम बड़ी उठे, आरटीआई के लिए, ऑल क्वासी जुडिशियल हियरिंग्स के लिए एंड जुडिशियल हियरिंग्स के लिए, तो देश का बहुत जबरदस्त भला हो सकता है. Yes, we should make it a national issue, sir, and take it as a campaign. Actually, आप बैंगलोर में वेबिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, मेरे जैसे और भी कुछ लोग जुड़ जाएंगे, जजेस वगैरह को इनवाइट कीजिए. देश भर सबको अपील कर रहा हूँ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों से वेबिनार्स खड़े हो. अगर हम ऐसे 100-200 वेबिनार्स क्रिएट करें तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा, पूरी व्यवस्था भी सुन सकेगी हमें. सर, here another thing is what we have observed in Karnataka Information Commission is once the order is issued by the Karnataka Information Commission, वो जो word format को PDF में बदल के upload कर सकते हैं easily. It takes hardly a few minutes to convert it into a PDF and put it on the website. But these people are doing what there is. Again, they are scanning it and putting on the website. ये बेवकूफों की कमी नहीं है अपने देश में. Yes, yes. This is बेवकूफी है. Yes. And mentally they are not prepared. They are not interested in this virtual hearing at all. They want that physical hearing. They are not interested in working at all. Yes, 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 sir. That is what is happening. Yes, yes, that is, sir. बिल्कुल. सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट की होती है. जिस प्रकार आपने कहा लोग इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए. व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, कोई भी व्यवस्था वो आप कर सकते हैं. जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो श्री राहुल सिंह जी जिस प्रकार से फेसबुक लाइव का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी व्यवस्था ठीक है, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है. कई बार ये बातें आती हैं कि ठीक है फेसबुक में जो डेटा अपन स्टोर करते हैं वो डिलीट हो सकता है, डिलीट किया जा सकता है, अकाउंट हैक किया जा सकता है. ठीक है, वो सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास प्रोसेस ये होती है, हमारे पास एक व्यवस्था होती है कि हम उस वीडियो को ऑनलाइन जब हम लाइव होते हैं, लाइव के बाद हम तत्काल उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं. और डाउनलोड करके उसको हम इतनी सारी हार्ड ड्राइव आती हैं, कितने सारे टीबी की तो आती हैं, तो 10 टीबी की 20 टीबी की यदि हम ले लें 15-20 हजार रुपए खर्च करके, इतना तो आयोग खर्च कर सकता है. तो हमें लगता है कि 10 साल की हियरिंग टोटल उसमें वो रख सकता है इतने सारे में. तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. और जैसे सर ने कहा, गांधी सर ने कहा कि हमारे पास ये जूम का इतना बड़ा ऑप्शन है. अब लोग इस बात को लेकर के, इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, इस चीज को लेकर के लड़ते हैं कि ये नेशनलाइज नहीं है, राष्ट्रीय नहीं है, चाइना का है, ये सारी चीजें. मतलब ये जो इलॉजिकल ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में कोई सेंस नहीं बनता है आज के ग्लोबलाइजेशन के टाइम में. एक तरफ तो आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और ये सब बातें करते हैं, उन्हीं का नमक रोटी खाते हैं, और फिर दूसरी तरफ कुछ चीजों को आप साइड में कर देते हैं, ये हमारा देश का नहीं है, ये विदेशी है, ये ऐसा वैसा है. तो ये सारी चीजें दोनों एक साथ नहीं हो सकता है. और क्या है कि पूरा सिस्टम 2-3 चीजों को एक साथ लेकर के चल रहा है. वो क्या बोल रहे हैं लोग, ये बिल्कुल वो स्वयं भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक अपनी बात को बराबर वो कंट्राडिक्ट करते जा रहे हैं. तो ये बड़ा ही एक डिलेमा वाला एक इशू है, और ये बिल्कुल इसको अपन एग्री करते हैं. हमारे बीच में नित्यानंद जी भी हैं. नित्यानंद जी, एक प्रश्न उठा यहाँ पर. अब आप हाई कोर्ट जबलपुर में आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और बहुत सारे आप मुद्दे और इस तरह से आप इशू रेज करते रहते हैं. बहुत सारे आपने सैकड़ों जनहित याचिकाएं लगाई हैं, और ये भी एक इशू आता रहता है. अभी गांधी सर ने इसको रेज किया, और इनफैक्ट आता रहता है टाइम टू टाइम कि वकील जो है, जो हमारा वकीलों का एक वर्ग है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि ऑनलाइन हियरिंग या वर्चुअल कोर्ट होनी
चाहिए। उनको ये लगता है कि बहुत सारा जो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर उपस्थित होने के बाद जो धंधा है, जो हमारा मैं धंधा है समझ वो रहा हूँ हमारा आपकी बात। प्रभावित होगा कहीं न कहीं। जी। नहीं देखिए, मैं गांधी सर से सहमत हूँ। 100% वर्चुअल कोर्टें तो नहीं चलाई जा सकती। कई मामले हैं जिसपे कोर्ट के समक्ष अपीयरेंस ज़रूरी होती है, चाहे क्रिमिनल मैटर्स हैं, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम बेस्ट है, जिसको वर्चुअल करना हो तो वर्चुअल कर ले, जिसको हाइब्रिड सिस्टम में खुद अपीयरेंस देनी हो, अपीयरेंस दे। दोनों सिस्टम को चलाना चाहिए और दोनों सिस्टम ओपन कोर्ट सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम, मैं मानता हूँ कि दोनों चीज़ें साथ-साथ सह-अस्तित्व का सिद्धांत यहाँ पे हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा और इन 8-10 सालों में गांधी सर अभी ई कोर्ट की बात कर रहे थे। हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि ई कोर्ट्स का बड़ा बेनिफिट मिला है वकीलों को। आज से 10 साल पहले केसेस की लिस्टिंग में बड़ी दिक्कतें होती थी हाई कोर्ट स्तर पे।